Hello, my beautiful kids. This is Sarita, and you are watching Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House. So, what we are going to learn today? We are going to learn an interesting subject. So, that is EVS, Environmental Studies, Part 1. Okay. So, the first chapter would be about myself. So, it means मेरे बारे में, आपके बारे में. जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप अपना सबसे पहले क्या बोलते हैं? योर नेम, राइट? सो देयर आर मैनी थिंग्स टू लर्न अबाउट यू, अबाउट योरसेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्ट. ओके किड्स, जस्ट टेल मी वन थिंग. आपको यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है. उस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? राइट, एक पार्क दिख रहा है. ओके, एंड उस पार्क में क्या दिख रहा है आपको? There's a grass, green grass. There's a lot of swings you can see here. Right, आप भी पार्क जाते होंगे ना? Good, and you should go. Okay, so let's do one thing. Let's play a game. Okay, so let us sit in a circle. Okay, and play a game about ourselves. One of us will roll the ball. The student who gets the ball will introduce oneself. Okay, did you get my point? जिस बच्चे के पास बॉल आएगी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, right? And then the student will roll the ball to another. Each one of us will get the ball in turn. Okay, so the first turn is for Anusha, and she's telling us, my parents call me Anu. Okay, now let's see what Anusha says about herself. She's saying, I'm Anusha Sinha. Okay, she's telling her name. Now it's your turn. Tell your name. Say, I am. Okay, good. Now she's telling, I'm 6 years old. She's telling her age. Now it's your turn. You have to tell me your age, okay? I live in Delhi. She's telling me she lives in Delhi. Okay, आप भी मुझे बताना, where do you live? Okay, good. I go to Morning Glory School. She's telling she goes to Morning Glory School. And just comment me your school name. Okay, I'm in class first. She's telling she's in first class, and obviously you are too. So our name is an important part of us, and you know this. Okay, we all have first name and a surname. We all have first name and a surname, or you can say a family name. Okay, some of us even have a nickname. कुछ बच्चों का निकनेम भी होता है. And what is nickname? Nickname is the name by which our parents call us, right? So there are some questions and you have to answer these questions. Okay, like, I'm Daman. He's telling to herself. She's telling to him, I am Annie. Okay, so let's start with first question. What is your name? Now just keep one notebook and one pencil along with you, and you have to answer of these questions. Okay, so what is your name? So you have to write here your name. Okay, I'll show you what is your name. So I will tell my name. Okay, I am Sarita. Okay, so now it's your turn. You have to tell your name. The second question is, what is your surname? As I already told you, we have first name and also surname. So you have to answer me for this question. Okay, the third question is, do you have a nickname?
You have a nickname. आपके पेरेंट्स ने आपका nickname रखा है. So you have to tell me for this. Okay? When is your birthday? Now, birthday. Okay. So birthday is something. It is very special for everyone because इसमें आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं. इसमें आपको केक मिलता है, right? Okay, so now you have to tell me your birthday date, okay? Okay, so this is rhyme, okay? And we will learn from this. Okay, this is rhyme and he's a boy, he's telling about himself. Now, after him, the turn will be yours and you will have to tell me about you. Okay, so let's start. What he's saying, I used to be so small, but now I have grown tall. He's saying, मैं पहले छोटा हुआ करता था, but अब मैं बड़ा हो गया हूँ. I can hop, skip and run. मैं कूद सकता हूँ. I can hop, skip, run. मैं कूद सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ. And even play with ball. और मैं बॉल के साथ भी खेल सकता हूँ. I go to the park and I go to the school and go to the park. मैं स्कूल भी जाता हूँ और मैं पार्क भी जाता हूँ. आप भी स्कूल जाते होंगे और स्कूल के बाद ऑब्वियसली आप जब थक जाते होंगे पढ़ते पढ़ते तो आप पार्क भी जाते होंगे, है ना? Play. I can study well. I can study well, play, run and laugh. मैं अच्छे से पढ़ाई भी करता हूँ, मैं खेलता भी हूँ, मैं हंसता भी हूँ और मैं भागता भी हूँ. I watch cartoons and play with plenty of balloons. मैं कार्टून्स भी देखता हूँ और मैं बलून्स के साथ भी खेलता हूँ. I'm always active, whether morning, night or noon. मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ. You should be also active. I'm always active, whether morning, night or noon. मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो. We all look different. Some of us are tall, while some are short. So as you can see, kids, there are two boys. Okay. One is playing with a ball and the second one is watching TV, watching cartoons. So, what does it mean? It means that we all are different. Some of us are tall and some are short. Some are fat and some are thin. Some are fair, कुछ गोरे होते हैं, while some are dark, कुछ कम गोरे होते हैं. Okay, so you know, growing up is also about learning to do new things on your own. It means जब आप बड़े होते हैं तो आप बहुत सारी चीजें खुद से करनी सीखते हैं, right? So अभी what you need to do is आपको मुझे बताना है कि आप क्या क्या चीजें खुद से करते हैं. Okay, so I will ask कि आप ये एक्शन खुद से करते हैं या नहीं करते या मम्मा या पापा से कराते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज टाइंग शूलेस. क्या आप अपने शू लेसेस खुद से बांधते हैं या मम्मा या पापा से बंधाते हैं जब आप स्कूल जाते हैं? आपको यहाँ पे टिक करना है. ओके ओके. सेकेंड इज कॉम्बिंग हेयर. आप खुद से अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं या अपनी मम्मा से कराते हैं? Let me know in the comment box. Okay. Third is packing school bag. जब आप स्कूल जाते हैं तो आप खुद से ही पैक बैग करते होंगे, right? Okay. Fourth is carrying your water bottle and your bag. आप स्कूल जाते हैं तो क्या आप खुद से बैग कैरी करते हैं and your bottle as well? मुझे बताना. Okay. Now the next is कीपिंग अवे टॉय. क्या आप अपने टॉयज को उनकी जगह पर रखते हैं या नहीं? शट अप योर बटन. क्या आप अपने बटन खुद से लगाते हैं या नहीं? वाइपिंग योरसेल्फ ड्राई. क्या आप खुद से अपने आप को टाल से वाइप करते हैं या नहीं?
कैरिंग एम्प्टी डिश टू द सिंक, क्या आप अपने एम्प्टी डिश आप सिंक में रखते हैं या नहीं? सो नाउ किड्स, you have to answer so many questions, okay? So answer me in your notebook, okay? So I will ask many questions. The first question is, are you a boy or a girl? You have to tell me you're a boy or a girl. If you are a boy, so you will write here, I'm a boy. Or you are a girl, so you have to write here, I'm a girl. Got it? The second question is, how old are you? Now you have to tell me your age. Okay? So answer me your age. आप कितने साल के हैं? What is the color of your eyes? आपकी आंखों का कलर कौन सा है? Blue, black, which one? So you have to answer me. What is the color of your skin? As I already told you, we all are different. We all are different. So you have to tell me the color of your skin. As I told you, some are dark, some are fair. So you have to write your skin color. Write what you are wearing. So आपको बताना है कि आपकी स्कूल यूनिफॉर्म कैसी है, या आप स्कूल यूनिफॉर्म में स्कर्ट पहनते हैं या ट्राउजर पहनते हैं. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू लाइक टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट. नाउ व्हाट डू यू लाइक टू ईट नाउ व्हाट you like now what do you like to eat in breakfast? Okay, so answer me for this. What can you do on a computer? अगर आप पेंट करते हैं या फिर आप कुछ भी करते हैं कंप्यूटर पे, जो भी आपको करना आता है वो आपको यहाँ पे राइट करना है. The next is, do you like to sing or play music? क्या आपको गाना पसंद है? I'm sure ये हर किसी को पसंद होता है. Okay. या फिर आपको म्यूजिक प्ले करना पसंद है? अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको म्यूजिक प्ले करना पसंद है तो आप क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? ओके, आपको यहाँ पे आंसर करना है. नाउ विच कंट्री डू यू लिव इन? यू हैव टू टेल मी इन विच कंट्री डू यू लिव इन. सो बेसिकली I expect from you that you are from India, right? So आपको यहाँ पे क्या लिखना है? India. Okay? अगर आप और भी किसी कंट्री से हैं तो वो वहाँ यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे. Okay? Which state do you live in? You have to mention here your state name as like Uttar Pradesh, and आपको यहाँ पे स्टेट मेंशन करनी है. ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ योर कंट्री? आपको अपनी कंट्री की कैपिटल मेंशन करनी है. व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप? आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि कोई बड़े होकर टीचर बनना चाहता है, जस्ट लाइक मी, राइट? ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू सी प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन? आपको कार्टून्स देखना पसंद है या आपको मूवीज देखना पसंद है? आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, वेयर वुड यू लाइक टू ट्रैवल? आपको कहाँ घूमना पसंद है? ओके, यहाँ आपको लिखना है. डू यू वांट टू ट्रैवल टू आउटर स्पेस व्हेन यू ग्रो अप? क्या आप बाहर अंतरिक्ष में, स्पेस में घूमना चाहते हैं? इफ यस, सो यू हैव टू राइट हियर. इफ नॉट, स्टिल you have to write here. Okay, so I'll tell you about games. There are many games we play. Okay, बहुत सारे गेम्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं, but each of us has a different favorite game. सबके फेवरेट गेम अलग अलग होते हैं. ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो आपका फेवरेट गेम है वो आपकी फ्रेंड का भी होगा, राइट? You know, playing games make our body fit and strong. जब हम गेम्स प्ले करते हैं तो हम एंजॉय तो करते ही हैं, बट उसके साथ गेम्स हमारी बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो यू शुड प्ले, राइट? नाउ दीज आर सम गेम्स, एंड आपको
इन गेम्स पे टिक लगाना है, जो भी गेम्स आप प्ले करते हैं. ओके, द फर्स्ट गेम इज स्निपिंग टूल. ये आपने जरूर प्ले किया होगा बिकॉज ये बच्चों का बहुत फेवरेट गेम होता है. सेकेंड इज फुटबॉल. सो थर्ड इज blindfold. Fourth is the one-leg hoop. Fifth is cycling. Sixth is Ludo. So अभी आपको यहाँ पे टिक करना है कि आप कौन कौन सा गेम खेलते हैं. And second thing is indoor games. You have to write here indoor games. And indoor games जैसे कि chess. आपने चेस खेला है कभी? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. सो यू कैन राइट हियर चेस. ओके, टेबल टेनिस. ओके, सो ऐसे ही आपको यहाँ पे गेम्स लिखने हैं जो इंडोर गेम्स हैं. इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, राइट? या जो हम घर के अंदर खेलते हैं वो क्या होते हैं? इंडोर गेम्स होते हैं. एंड आउटडोर गेम्स जैसे कि आपने यहाँ देखा football, cycling, so you can write here. Okay, so as you can see many pictures here, so you have to write their names. And what are they? Everyday things, जो कि आप जो चीजें आप डेली में करते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, यूज करते हैं, so आपको यहाँ पे इनका नेम लिखना है. ओके, Okay, I'll show you. Things you eat. आप क्या क्या खाते हैं? राइस खाते होंगे आप डेफिनेटली. एंड मुझे ये भी बताना कि राइस किस किस को पसंद है. मुझे तो बहुत पसंद है. एंड व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी? दिस इज राइट, दिस इज चपाती. We will write here. Okay. Things you drink. आप क्या क्या पीते हैं? आप जूस पीते हैं. और आप क्या पीते हैं? वाटर, राइट. थिंग्स यू वेयर. आप क्या क्या पहनते हैं? आप सॉक्स पहनते हैं. जब आप स्कूल जाते हैं तो आप सॉक्स पहनते हैं. और what is it? What is this? This is cap, right? So you have to write here. Okay. थिंग्स यू यूज. आप क्या क्या यूज करते हैं? जैसे कि कीज यूज करते हैं आप, चाबी, राइट? एंड जैसे कि स्पून से आप क्या खाना खाते हैं, है ना? आपको यहाँ पे इसका नेम राइट करना है. थिंग्स यू कैन मेक अ गार्लैंड. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज पेपर बोर्ड. सो आपको यहाँ पे इसका नेम राइट करना है. ओके, थिंग्स यू हियर. आप क्या क्या सुनते हैं अपने कानों से? डोरबेल. ओके, एंड व्हाट इज दिस? टेल मी. राइट, दिस इज टेलीफोन. थिंग्स यू कैन स्मेल. आप क्या क्या चीजें स्मेल कर सकते हैं? सोप, जिससे आप नहाते हैं, राइट? जिससे आप. एंड द सेकेंड इज, टेल मी fast. Good, this is oil. Okay, so you have to write its name. Now things you care for. आप ऐसी बहुत सारी चीजों की केयर करते होंगे, बट फिलहाल अभी हम बात करेंगे पेट एनिमल. पेट एनिमल आपके घर में होंगे या आप लोगों में से किसी के घर में होंगे. सो थिंग्स यू केयर फॉर. पेट एनिमल ऑलमोस्ट हम सबके घर में होते हैं, राइट? जैसे कि पेट एनिमल डॉग, कैट, है ना? सो एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज दिस? दिस इज बुक. सो यू हैव टू राइट हियर. ओके, नाउ वी कम टू द फेस एक्सप्रेशन. ओके, जब हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, जब हमारा कुछ बोलने का मन नहीं होता है, so what we do, we just do face expression. हमारे फेस पे वो एक्सप्रेशन आ जाते हैं जो हमें बता देते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं या हमें क्या चाहिए, राइट?
सो आपको ये फेसेस देखकर बताना है कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या फील करते हैं, या आप ऐसे फेसेस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं. ओके, सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज hungry. He is hungry and he is asking to his mom to give him something to eat. इसको भूख लगी है, so he is asking for food. That's why he made this expression. Okay. Second is thirsty. जब आप प्यासे होते हैं आपका भी फेस एक्सप्रेशन ऐसे ही हो जाता होगा, है ना. तो आपको यहाँ पे राइट करना है. क्या राइट करना है? I'll let you know. जब आपको प्यास लगती है तो आप मम्मा के पास जाते हैं, आप मम्मा से बोलते हैं मम्मा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो. सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे I asked my mom, बिकॉज आप सब बातें तो मोम से ही बोलते हैं ना अपनी, to give some water. Okay, now tired. Tired means थका होना. क्या? कुछ काम करके थक जाना. जैसे आप स्कूल से आते हैं तो आप थक जाते हैं ना, तो आपका फेस एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है ना. तो आपको यहाँ पे राइट करना है. ओके, ये कौन सा फेस एक्सप्रेशन है? ये सबको बहुत अच्छे से करना आता होगा. इट इज हैप्पी. जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप ऐसा फेस एक्सप्रेशन देते हैं. ओ, ये कैसा एक्सप्रेशन है? सैड वाला. जब मम्मा हमें चॉकलेट नहीं लेने देती है तब हमारा ऐसा फेस एक्सप्रेशन होता है. एंड ये कैसा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपको जाना पहचाना लग रहा है ना? ये आपको भी ऐसा फील होता होगा ना. ओके, सो नाउ कम टू दिस एक्सप्रेशन. ये कैसा एक्सप्रेशन है? और इसको गर्मी लग रही है ना. आपको भी जब गर्मी लगती है तो आप भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं ना. ओके, सो दिस वन इज कोल्ड. ठंड लग रही है ना. और जो कि अभी बहुत ठंड हो रही है तो आपके ऐसे एक्सप्रेशन बनते ही रहते होंगे. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर. गुस्से वाला. लेकिन गुस्सा करना गंदी बात होती है, यू नो, बैड हैबिट. सो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए और ये एक्सप्रेशन आपको नहीं करना. ओके ओके, व्हाट इज दिस? सरप्राइज. Surprise. When you get something, you give this expression, right? Okay, now we will do one thing. We will make a badge. आपको भी ये वर्क करना है. अभी आपको अपनी नोटबुक में जो जो अभी मैं बताऊंगी आपको वो राइट करना है अकॉर्डिंग टू these. Okay, according to this. Now first you have to write your name here. Okay, suppose your name is Rohan, so we will write here Rohan. We'll write here name and this, then school name. School name could be anything. आपके स्कूल का जो भी नेम होगा. यहाँ पे आपको क्लास राइट करनी है. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ऑब्वियसली आप फर्स्ट क्लास में हैं तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं. ओके, सेक्शन. आप कौन से सेक्शन में है? ए में, बी में या सी में, जिसमें भी आप हो. ओके, यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर लिखना है. टेलीफोन नंबर या तो आपके पापा का या आपकी मम्मा का. ओके, नाउ ये आपको यहाँ पे लिखना है अपने स्कूल का बस नंबर. ओके, जिससे आप जब भी कभी ट्रिप पे जाएं तो आप इस बैच को अपने साथ लेकर जाएं. और अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी बस
मिस हो जाती है तो आप ये अपना बैच किसी को भी दिखाकर आप इजीली अपने मैम के पास, अपने क्लासमेट्स के पास वापस जा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस नंबर लिखना है। एंड द लास्ट वन इज एड्रेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना घर का एड्रेस लिखना है। ओके, सो इट्स डन। लेट्स मूव टू अनदर पेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू राइट देयर जो आप चीजें खुद से करते हैं। ओके, जैसे कि आप क्या क्या चीजें खुद से करना सीख चुके हैं, जैसे कि शू लेस करना, जैसे कि शू लेसेस टाई करना। सो आप यहाँ पे लिखेंगे टाइंग शू लेसेस, राइट। जैसे हेयर कॉम करना, सो यू विल राइट हेयर कॉम्बिंग हेयर। और भी आप जैसे बहुत सारी चीजें खुद से करते होंगे तो वो आपको यहाँ पे राइट करनी है। नाउ आपने बहुत कुछ अपने बारे में लर्न कर लिया, अबाउट योर सेल्फ यू हैव ऑलरेडी लर्न। नाउ इट्स टर्न योर मम्मा, इट्स टर्न फॉर योर मदर। सो अब हम यहाँ पर वो चीजें राइट करेंगे जो आपकी मम्मा आपके लिए करती है ना। जैसे कि क्या करती है मम्मा आपके लिए, बताइए मुझे। राइट, आपके लिए खाना बनाती है, तभी तो आप जाके मम्मा को बोलते हो मम्मा भूख लगी है खाना दे दो, है ना। सो वी विल राइट हियर कुक फूड। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे बच्चा क्या करना है, आपको यहाँ पे वो चीजें राइट करनी है जो मम्मा आपकी आपके लिए करती है। ओके, so now it's done for today and I hope you have enjoyed a lot. So stay excited for clamp of another video. Bye bye.